मैम गलत मैम मैम लुक सत्य मैम Okay? Done. Hello. Angkat dulu. Mana ya? Oke. Thank you. Dipshi. Lie down. Dipshi का मैम हो गया Dipshi इधर सेंटर में है एक साथ में Thank you. That you had built for your mom and dad and your sister took it away from you? You know, when you're in those moments where everything looks bleak, you are absolutely alone. And then you know why? Why you have to be alone? Because that's your karma. We've not come down on earth to eat, sleep, pay bills and party, isn't it? So when you're going through that divorce, when you're going through that financial crunch, when you are abandoned by your parents, when you're abandoned by your family, when people don't speak to you, when you're insulted, when things are taken away from you, when your health deteriorates, when life looks so bad that you feel you just can't go on. You know what that is? That's just your soul's journey. You need to be alone. Nobody can be there in those times. How many of y'all can just take 2 seconds and reminisce, go back in time when something horrible and traumatic happened to you, which actually shaped your entire life? Am I right? Just let's take 2 seconds and think of that time when you were absolutely alone. Shut your eyes and think, oh my God, that was the time when my parents abandoned me, when my husband left me, when he took away my house, my children were not there, I was all alone, financially I was struggling, I couldn't tell anybody. Think. Just think. Just calm down. Forget that there are cameras. Forget there are antennas. Forget that you've come to an event. Calm down. Close your eyes. Allow yourself to feel yourself. Allow yourself to get away from all this drama. I want everyone to close their eyes. Close your eyes. It's a very strong move, you know. We keep our eyes open all the time because we're so nervous, we're so scared. Close your eyes. I'm allowing you to feel safe. When you close your eyes, I just want you to say one thing to yourself. I am safe. I am not in danger. Put your hand on your heart and say, I am not in danger. Notice which part of your body completely relaxed. You know, when I first got over this trauma was when I started learning neuro-linguistic programming. And it teaches you the way to talk to yourself. NLP stands for Neuro Linguistic Programming.
And it's simply the tuning that you need between your neurons, that is your brain, your mind, and your language, and it's the programming that we make. बहुत सारे वक्त में हमारा रॉन्ग नंबर ही लगता है. खुद के साथ भी बात करने लगते हो ना तो रॉन्ग नंबर ही लगता है. अपने पति के साथ बात करने लगते हैं तो जो हम बोलना चाहते हैं वो टोटली अतरंग तरीके से बाहर निकलता है, वो कुछ गलत ही आ जाता है. Has that ever happened to you? Whenever there's a crisis in the house, everyone is fighting, you know that you're not supposed to say certain things. But निकलता क्या है? सब कुछ उलट पलट, सब कुछ गलत ही निकलता है. फिर आप 20 मिनट के बाद अपने कमरे में जाते हो और क्या सोचते हो? What do you say to yourself when you say something wrong? Shit man, I shouldn't have said that. Has that ever happened to you? Imagine there is no brain 2.0. You're still living with that gazillion-year-old brain. Have you ever thought about it? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आपका जो ब्रेन है, जो सिर्फ 25. कुछ लोग कहते हैं कि औरतों का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा अनुभव है कि औरतों के बिना कोई घर नहीं होता. बस उनकी एक ही शिकायत, मैं एक बीवी हूँ और मैं एक माँ भी हूँ, पर खबरदार जो किसी ने मुझे आंटी कहा. बस, and you know why I chose her was because she's also a singer. Not any singer, not bathroom singer. She's sung for Z5 and she's also acted in a movie. She's also produced 3 movies. भाई मेरे को अपने डायलॉग्स फिर सीखने में इतनी दिक्कत होती है. फिर मैं बोलूँ सेक्शन 137 my lord, and I'll be like leading celebrity tarot card reader. और जब मैं celebrity कहती हूँ ना, not ऐसा वैसा एवरी celebrity. She has actually ये हमारे contestant and the winner is जिंदगी. Okay. And Deepshika Nagpal obviously does not need any introduction. जब उन्होंने इतने बहुत ही popular movies किए थे like Badshah and Koila, that time I had no clue about her. I had not even seen the movies, and frankly I have not even seen the complete movies. लेकिन whenever she comes or I see a meme, then I'm like, अरे that's my bestie, I know that. So I think our friendship goes beyond तुमने कौन सा रोल किया, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तुमने कितना पैसा कमाया. I think at the end of the day we all are just touching souls, and I think the dear Lord knew me that I needed a soul like her, and I think the universe knew you also needed a soul. I think we completely manifested each other into our lives, and I'm so grateful that she's here today and helping me out in this day. I'm always there for her. आज भी मैं पहले पहुंची, ये नहीं पहुंची. I was more stressed about her event के I had a morning yoga session. I was like, oh my God, I have to reach. इन्हें तो मेरी जान ले लेगी. मैडम ही नहीं पहुंची यहाँ पे. So अभी she was saying कि ये दोनों कोई बोलता है तो ये इधर भागती है मुन्नी, ये इधर भागती है नास. मैं ही हूँ जो सामने आके सबसे लड़ती रहती हूँ. So I am the fighter cock here. एक बैल चाहिए टीम में कि कौन है शत्रु, चलो आक्रमण. शी इज दैट, शी इज मिस आक्रमण. पुट मी आगे, तू आगे जा, हम सब देख लेंगे. Anyways, happy Women's Day, and I'm so happy to be here, and congratulations to my friend for your academy. I'm so proud of you. जब ये आपसे बात कर रही थी मुझे वहाँ बैठ के रोना आ रहा था. ये जब भी बोलती है मुझे रोना आता है because I am the witness. I've seen what she's gone through. और आज के दिन के लिए उसने और उसकी टीम ने इतनी मेहनत की है. And again that chaos was happening. ये नहीं वो नहीं, but that is a part of life. And whatever she was saying, yes, the God puts you in the corner, so you solve your problem yourself. Nobody comes to you. And I want to tell about my this lawyer friend. अगर ऐसी criminal lawyer है तो सब criminal ही बन जाएंगे फिर तो. And Vishnu ji, thank you so much इतनी अच्छी बातें करने के लिए. It is so you. Thank you so much. Thank you so much for having me here. दीपशी ने हम दीपशी प्यार से बुलाते हैं because we have done a lot of theatre together.
इनका नाम जो है वो गिनीज लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी ये दुनिया 211 में, जिन्होंने 9 डिपार्टमेंट संभाले थे। ये एशिया की फर्स्ट लेडी हैं जिनका नाम And that won't really look good. But it's nice to surround yourself with people with so much talent. हाँ, नहीं. Okay, Deepshi, I'm going to start with you only. Alright? You've seen the glamour of the industry and also the harsh realities of it. We both. What was a moment in your life when you felt completely broken, and what did you tell yourself to stand up again? ग्लैमर जो आप लोग सभी एक्टर्स को देखते हैं तो नेगेटिव रोल पॉजिटिव रोल करके लोग उसकी इमेज बना लेते हैं, ये तो ऐसी ही होगी, ये तो ऐसी ही होगी, यू नो। सो माई इमेज इज ऑलवेज लाइक ग्लैमरस एंड आउटस्पोकन एंड गुंडी दादागिरी whatever. Any woman, she has a voice, she's a negative woman. चाहे वो किसी को भी अपना ओपिनियन रखे वो नेगेटिव होती है। So my dad has always brought me up like that कि कुछ भी हो जाए अपनी बात ज़रूर बोलनी चाहिए। ये बातें आप कैसे बोलते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। I'm not saying लड़ाई करो झगड़ा करो and all, but what she asked me all my career, there was never struggle for me to work and all, but my biggest challenge when I went through my divorce, first divorce, I lost my parents. I had my 2 little kids. My son was 8 months old. मेरी बेटी 4 साल की थी और तभी मेरा डिवोर्स हुआ, तब मेरे फादर की डेथ हुई। उस टाइम पे लिटरली कोई नहीं था मेरे पास। एक होता ना औरत अपने 2 बच्चों के साथ अकेली थी और उनको आगे भी बढ़ाना है, पढ़ाना भी है, तब करना, एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू। एक दिन मेरी आदत है कोई भी चीज़, ये मेरी थेरेपी आप लोग भी काम कर सकते हो। जब भी कुछ भी होता है ना नहीं समझ में आता, उस टाइम रोना रो लेती हूँ, फिर बोलती अब कितना रोएगी बहन, कब तक रोएगी बता दे। तो आई टॉक टू माई सेल्फ एंड आई सेड हो गया, रो लिया, सब कुछ हो गया, यू कैन नॉट अनडू इट। अब मैं जहाँ गिरी हूँ ना बॉटम पे, मैं उससे ऊपर जाऊँगा। एंड दैट पावर व्हेन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हेन यू फील दैट यू कैन डू इट, देन ऑलमाइटी पूरी कायनात तुम्हें उसके लिए हेल्प करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिस इज़ व्हाट आई सर्वाइव। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनों ने इतना मारा कि मुझे बाहर वालों की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा फोकस होता है घर पे उठो, जल्दी करो, शूटिंग पे जाओ, पैसे कमाओ, बच्चों को देखो। सो आई एम ऑल द टाइम लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आई लिव इन माई ओन वर्ल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी इन दैट बबल। But you know, Deepshi, what you mentioned right now, sorry to cut you, that you speak to yourself. Like a Gada 24 hours like I did when in my 20s, I wouldn't have enjoyed that, you know, and the kids would have grown that kuchiku age of them, you know, like wanting to be You with know, me. so it's so nice that you said this. I'm so happy that you said this because I want to bring a very, very valid point, which I also, kind of found out on my own, and I teach my students as well. You know, when I was small and I was only 8 years old, I always knew I wanted to be an actress. और मैं ऐसे ही चलती थी. I didn't care about what people said. I was in Delulu. I was completely following my dreams. And like she said, at that time I didn't have any problems because I was very, very self-centered, self-love. I will do this. Today I have the problems because I borrowed other people's opinions. दोस्तों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच मलाड वेस्ट से इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमएलए सम्मानीय असलम शेख साहब मौजूद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख राजनेता श्री असलम शेख साहब न बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। इनका राजनीतिक कार्य प्रमुख रूप से शहरी बुनियादी ढांचे, किफ़ायती आवास, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच तथा अल्पसंख्यक और वंचित समुदायों के कल्याण जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा है। कोविड-19 महामारी जैसे कठिन समय में राहत कार्यों में सक्रिय रहे और ज़रूरतमंदों तक चिकित्सा सहायता व आवश्यक सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। मैं चाहूँगा सर कि आप ये जो तनाज़ ईरानी एकेडमी आज खुली है और जिसके तहत ये जो पहला फंक्शन वुमेंस डे और इतनी जो सुंदर प्रतिभाशाली महिलाएं आपके सामने हैं, तो हौसला अफजाई के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए दो
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ सारी महिलाओं को बहुत बहुत वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खास करके शहनाज जी को ये इनिशिएटिव लेने के लिए डबल मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी और दिल जो है वो एक साथ नहीं चलते, ऊपर नीचे चलते हैं। उसी तरीके से शहनाज जी के बारे में इतना सभी लोग जानते हैं कि मुंबई में आके अपना मकाम बनाया, अपनी पहचान बनाई, और जिस तरीके से मैंने कहा लाइफलाइन जैसे ऊपर नीचे होती है, उस तरीके से जो डाउनफॉल के टाइम पे भी अपने आप को संभालने के बाद में एक अच्छा इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया कि बाकी के लोग जो ऐसे डाउनफॉल में आते हैं तो उसको किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, उस इनिशिएटिव लेने के लिए मैं खास करके आज यहाँ पे आया हूँ आपको मुबारकबाद देने के लिए। क्योंकि अगर हकीकत में अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही ज़िंदगी कहलाता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये इनिशिएटिव आपने लिया है और इसके लिए मैं कभी भी आपके लिए पूरा तैयार हूँ। और सभी पॉलिटिशियन ऐसे नहीं होते, सभी बंदे ऐसे नहीं होते, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ तो मजबूरियाँ होंगी किसी की, वरना यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। पॉलिटिशियंस भी हैं, दिन रात काम करते हैं और कभी कभी थक के सो जाते होंगे, लेकिन ऐसा है कि अगर अच्छा काम नहीं करो तो आज की तारीख में मुंबई शहर बहुत तेज़ रफ्तार से चलता है। और इन 30 सालों में 30 ईयर्स से अगर लोगों ने मुझे बार बार अगर जीता है तो शायद कुछ ना कुछ उनका विश्वास होगा, उनका प्यार होगा। आप अभी बीएमसी इलेक्शंस भी जीते हैं, राइट? नहीं, बीएमसी इलेक्शंस मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा जीता हूँ, और जो चेयरमैन है वो भी मेरा बेटा ही बना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नाम हो गया। तो नहीं, मेरे कहने का मतलब है हम लोग सेफ हैंड्स में है। 100% ऑल द वुमेन्स आर सेफ। ये शिवाजी महाराज का राज्य है। Yes. अगर यहाँ सेफ नहीं हो तो वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकता। But Mumbai is the safest city in India. हाँ या ना? I love Mumbai. देखिए, ऐसा है कि जिस हिसाब से अभी मैडम ने बोला, इसलिए मैं थोड़ा सा मुंबई शहर में और दुबई में क्या फ़र्क है। एक दुबई में महिलाएं सेफ हैं और एक मुंबई में सेफ है। दुबई में तो बहुत ज़्यादा ही सेफ है, लेकिन मुंबई में इसलिए सेफ है कि आप ये समझ के चलिए कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है यहाँ पे आबादी है लोगों की, और 1 लाख पुलिस वाले भी नहीं है और फिर भी मुंबई संभालते हैं। इसलिए पुलिस वालों को भी मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ। तालियां। इसी पोजीशन में भी जो है हमारी, देखिए जितनी भी घटनाएं होती है, खास करके यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, इसलिए बताना, जितनी भी घटनाएं होती है 97% नॉन घटनाएं होती है। वही लोगों के साथ घटनाएं होती है जो आपका दोस्त हो या आपका रिश्तेदार हो या आपको जानने वाला, जिसके लिए आपने दरवाज़ा खोला। वरना पुलिस इतनी सक्षम है कि 2-3% ऐसा है कि शायद ही घटना इस मुंबई शहर में हो जाती है। इसलिए मैं मुंबई पुलिस को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस काम के लिए। कम से कम प्रोटेक्शन जो है वो वुमेन्स को बहुत अच्छा मिलता है। शहनाज जी के बारे में आता भी कहा, जिनके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं भी अच्छा इनका फ़ैन रहा हूँ, लेकिन आज योग से मैं एकता जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि वह उन्होंने मुझे इंसिस्ट करके यहाँ पे लाया। बोला मैं रमज़ान में जल्दी निकलता नहीं, रोज़ा रख के बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि अभी सुबह हमारे सेशंस चालू है तो 8 बजे निकलना, रात को वापस आना, फिर सुबह 8 बजे जाना, और मुंबई की ट्रैफिक तो आप लोगों को पता है। लेकिन 1-2 साल और आप सफ़र करिए, डेफिनेटली जिस तरीके से बांद्रा से लेके टाउन तक का मुंबई बदली हुआ है, आने वाले 2 साल के अंदर सर, आने वाले 2 साल के अंदर आप रिक्शा से मुंबई में 35-40 मिनट्स में आप कहीं भी पहुँच पाओगे। यानी दहीसर से टाउन जाना है तो यू विल क्रॉस इन 35 to 40 मिनट्स। ये नया जो सी लिंक के पास और कोस्टल रोड जो तैयार हो रहा है, उसके लिए बहुत इनिशिएटिव लिया जा रहा है। खास करके जो मेरा एरिया है वो मुंबई शहर में, वहाँ एक अंडरग्राउंड टनल शुरू होगा जो 2 किलोमीटर तक बोरीवली जाएगा और बाहर निकलेगा। तो बहरहाल वुमेन को तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शहनाज जी, इसी तरह आप अच्छा काम करते रहिए। तनाज सॉरी सर, नहीं शहनाज मैं इसलिए बोला कि मैं एक शहनाज हमारी बहन है, शहनाज ईरानी, शायद आप जानते होंगे, उनको भी मिलना था। तनाज जी मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। नाम से क्या होता है, आदमी तो अपनी शोहरत से जाना जाता है ना। नाम की ज़रूरत तो उनको होती है जिनको पहचान दे। 3 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक होता है जो नया कमाता है तो दिखाना शुरू करता है, एक वो होता है जो कमा लेता है फिर अच्छे कपड़े और बैग लेके दिखाना चाहिए, एक वो होता है जो यूं ही चल पड़ता है। शहनाज वैसे यूं ही चल पड़े, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप में एक जो है ना वो पहचान है। तो बहरहाल मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपका ये कन्वर्सेशन में रुकाना नहीं चाहता हूँ। नहीं, हम आपको इनफैक्ट थैंक्स देना चाहते थे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम इन बिटवीन ऑल दीज ब्यूटीफुल वुमेन। नसीब है आप बिल्कुल। वैसे मैं चाहूँगा कि यहाँ जितने लोग हैं, कभी भी कुछ ही काम के लिए, यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी कहाँ ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत तो इंसान में, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कभी ना पड़े, लेकिन पड़ती है।
कहीं किसी का पासपोर्ट हो गया, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, किसी की बॉडी लाना है, किसी की बॉडी पहचाना है, कुछ भी करना है। मुंबई शहर के अंदर 3 चीज़ें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्री रखा हूँ। एक तो फ्री एम्बुलेंस है, एक फ्री हर्ष सर्विस है और फ्री डायलिसिस है। तो किसी भी गरीब इंसान का, यानी अभी क्या इतने सारे बड़े लोग हैं, किसी के मेड, किसी का ड्राइवर, किसी का कुछ, अगर किसी को भी कोई ऑपरेशन करना है, इंक्लूडिंग बाईपास भी करना है, तो आपका ये भाई फ्री करा के देगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अभी आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, तो कुछ भी ट्रीटमेंट के लिए सबसे बढ़ चढ़ के विदाउट एक पैसा खर्चा किए सारे ट्रीटमेंट की जवाबदारी मैं आपके साथ लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आपसे माइक ले लिया, इसके लिए आपके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। किसी कंपेनियर से माइक लेना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। थैंक यू। और स्पेशली विष्णु जी से। And can I please have up on stage Dr. Puneet from Karam Laser Clinic? Please come up on stage. He is one doctor at just one call away. He came to support me immediately. I must absolutely acknowledge his, his absolutely big heart. He didn't even know me, and then I became his patient, and he patiently listened to me.